Hello everyone, welcome to Gurukul Group of Education Wing, Mangoldoi campus. So we are planning for new session, that is 25-26. Some updates are there as we have admission time. So if someone want to give admission here, so we are here with some updates. So let's come. Already I have shown this is security check position. So if someone enter here, they have to give the information here for security purpose. And this is our reception room or waiting room. 3 rooms are there. Here if someone visit for admission purpose, first of all they have to talk to security, then they will given here for waiting, and after that they can go for office room. So we have 2 rooms here. One is for office purpose, पेमेंट और इशूइंग फॉर्म, और एक ये प्रिंसिपल रूम है. बाकी ये बड़ा सा बिल्डिंग है, ओल्ड एकेडमिक बिल्डिंग, 4 स्टोरेज. यहाँ पे मेनली क्लासरूम से अप टू क्लास 8. एंड नीचे का जो रूम है वो आपका प्राइमरी सेक्शन के लिए है. आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें वी हैव कंप्लीट स्कूल, दैट इज बालबाटिका 1 to class 12, बालबाटिका 1, बालबाटिका 2, बालबाटिका 3. बालबाटिका 1 the age is 3+, बालबाटिका 2 4+, बालबाटिका 3 5+, in class 1 6+. So in this year we have some arrangement for primary classes because foundation taken place in primary classes only. So let us see some modifications are there, like interview type. This ground floor is basically for primary, pre-primary, that is Balbatica 1, Balbatica 2, Balbatica 3, class 1. Class 1 we have 2 sections right now. Next year it may be 3 sections. So some painting are there because we believe on joyful learning. So student need some activities. So here in wall some drawing, very nice drawing. So student feel good when they enter, they feel positive vibes. So this is new modification. Earlier this drawing was not there. Inside the room also we are will show some activities drawing are there. And this part also modified. Earlier tiles was not there, we have put tiles, and this drinking water system was also modified. Slowly we are also trying to modify, we are trying to do better. So this part has been modified, so it's looking so nice. So in this year the primary classes, mainly primary sections, so classroom and with decoration, desk bench also has been changed. That is very nice. Room are locked actually. Later on I will show. We have some new updates in girls hostel. So earlier there were only 2 floors, now 1 floor has been added. So because some students already have taken advanced admission, and in that side we have another building. In that building generally teachers, residential teachers, male teachers used to stay. So in that floor that building also we have added 1 new floor. And already earlier shown, this is new academic building. So basically this part not so beautiful. Already in earlier videos also I have told, when we enter in this part we get positive vibes, positive vibe मिलता है. गुरुकुल का एक center point है, small this one garden, so nice garden. And this building, new academic building, यहाँ पे मेनली क्लास 9 से 12 तक होता है, और भी ऊपर बनेगा. अभी नेक्स्ट ईयर ये बिल्डिंग हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि अभी गर्ल्स का एक फ्लोर बनाया, क्वार्टर का एक फ्लोर बनाया रिसेंटली, और बॉयज का भी एक फ्लोर, अभी फाइनल फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा. सो ये एक छोटा सा पार्क है, ग्रीनरी पार्क.
पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया स्विमिंग पूल। और ये जो ऊपर क्वार्टर का, इस बार रेसिडेंशियल स्टाफ थोड़ा सा हम लोग को बढ़ाया, क्योंकि जो रेसिडेंशियल स्टाफ है ना, वो क्या होता है जब यहाँ पे रहता है, क्योंकि हम लोग स्कूल जब थोड़ा सा अंदर में है, तो जो स्कूल टीचर्स बाहर से आते हैं स्कूल बसेस में, वो जल्दी स्कूल बसेस में ही जाना पड़ता है, तो सब कुछ एक्स्ट्रा काम होता है, बच्चे का कॉपी चेकिंग। तो रेसिडेंशियल स्टूडेंट बेटर परफॉर्म करता है। हॉस्टल का जो बच्चे लोग है, उसका आपका इवनिंग क्लास भी रेसिडेंशियल टीचर ही लेते हैं, और एक कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है, क्योंकि हम भी तो यहाँ पे रहते हैं, मैनेजमेंट टीम पूरे स्कूल कैंपस में रहते हैं, तो एक बेटर एक बॉन्डिंग होता है, इसलिए रेसिडेंशियल स्टाफ को बढ़ाया हम लोग। तो ऊपर में एक फ्लोर और ये फाइनल फ्लोर बन गया। और उस टाइम मैंने एक दिखाया था कि हम मंदिर बन रहा था, अभी मंदिर कंप्लीट हो गया, तो मंदिर को थोड़ा सा दिखाते हैं, क्योंकि कोई भी अच्छा काम के लिए गॉड का ब्लेसिंग बहुत जरूरी है। तो मैं ये सोच के कि हम लोग जो गीता व वेद में जो लिखा है कि ये जो कॉर्नर है, ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर फॉर पॉजिटिव वाइब्स, सो वी हैव टेम्पल हियर। सो टेम्पल का भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया। आज पूजा है, आज मतलब इनॉग्रेशन है मंदिर का। सो ये इंटरनल पार्ट बहुत अच्छा से वो जो टाइल्स वगैरह, मूर्ति का टाइल्स बहुत अच्छा से लगा है। Here peaceful place, this is for meditation place. So already I told, this is our, in earlier video, this is our residence. We director means I director and cameraman principal ma'am this is our residence. This is one of the positive side of Gurukul, because we are staying here, तो हम लोग यहाँ से बेटर मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर मतलब क्या होता है, हम लोग का अच्छा बॉन्डिंग है स्टूडेंट का साथ, टीचर्स का साथ। गुरुकुल मेनली जाना जाता है बॉन्डिंग के लिए, इमोशंस के लिए, डिसिप्लिन के लिए। तो हमेशा मैं बोलता रहता हूँ, डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ सक्सेस, एंड वी बिलीव ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, रियल लाइफ प्रॉब्लम। बिकॉज पढ़ाई का बात तो हम लोग को जहाँ पे भी हम लोग जॉब करेंगे, प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करना है। तो एक जॉयफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और एक मैं बात बोलना चाहूंगा, अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारा इनोवेशंस प्रोग्राम अटेंड किया है। तो एक चीज फील किया, स्टूडेंट लाइफ में ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। जैसे मेरा जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड में जब मैं क्लास 6-7 में था, तो हम लोग क्या होता था, खेती होता था, और खेती में एक पुराना मशीन, सेलो मशीन से हम लोग पानी सींचता था खेत में पानी देने के लिए। तो वो बीच बीच में खराब होता है, तो उसमें हम लोग कभी कभी ना मैकेनिक के साथ मिलकर हम लोग खुद ठीक किया था। तो उसमें क्या होता था, जितना भी मशीनरी है व इलेक्ट्रिक डिवाइस है, क्योंकि मेरा भाई अभी वायरिंग वगैरह करता था, तो इलेक्ट्रिक डिवाइस का मेरा काफी नॉलेज था स्टूडेंट लाइफ में। तो मैंने जब इंजीनियरिंग किया, तो देखा है कि मेरा जो प्रैक्टिकल पहले से इतना बेस्ट है। जब मैंने थ्योरी पढ़ा, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हुआ। वो चीज हम स्कूल में भी ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टेक्निकल पीपल। तो स्टूडेंट जब पढ़ाई को टेक्निकली करता है, एप्लीकेशन बेस्ड करता है, तो एक इंटरेस्टिंग, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होता है। रूट लर्निंग हम लोग बिलीव नहीं करते, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएटिविटी को डेवलप कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर हम लोगों का जो क्लास 10 का रिजल्ट है, सबको मालूम है, जो टॉपर था वो 99.2%। खाली कभी कभी क्या होता है, गलती से एक स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा हो सकता है, लेकिन लास्ट ईयर हम लोगों का मैक्सिमम स्टूडेंट को बहुत अच्छा परसेंट मिला है। 95 से ऊपर, 7 या 8 स्टूडेंट को 95% से ऊपर मिला था। 25 स्टूडेंट को डिस्टिंक्शन मिला। 12 में भी काफी स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट किया। 12 में भी, क्योंकि 12 में स्टूडेंट कम था, ओनली 12 स्टूडेंट था, तो उसमें से जीशान एंड अनुष्का काफी अच्छा रिजल्ट किया। स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री में उसके बहुत अच्छा मार्क्स है। एंड फिर जीशान आपका CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्रैक करके फिर तेजपुर यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड MSc कर रहे हैं, और अपियरिंग में मिला है, बल्कि उसको वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। तो इट्स वेरी गुड साइन। तो स्टूडेंट जो अभी पास आउट होके गया, कभी कभी मेरे से बात करता है कि सर यहाँ पे हम लोग फाउंडेशन बहुत अच्छे से मिला। तो लास्ट ईयर जो अच्छा रिजल्ट किया था, अभी 11 क्लास में हम लोगों को काफी स्टूडेंट, जैसे देवाशीष चौरिया, अंगोराग, विशाल,
ये 3 मेनली हम लोगों का क्लास 10 का अच्छा मार्क्स होल्डर था जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं साइंस में। और इस साल भी हम लोग को थोड़ा सा टीम मॉडिफाई किया, टीम वगैरह हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला है कि हम लोग का जो 1 से लेके 10 तक वो तो लास्ट 3 ईयर्स से हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फीडबैक, होम विजिट, ये सब में जब गार्जियन से बात किया, बच्चे से में हम लोग इंटरेक्ट किया, तो देखा है कि हम लोग मोटा मोटी ऑलरेडी 3 साल से हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस बार हम लोग बाल बटिका 1, बाल बटिका 2, बाल बटिका 3 इसमें थोड़ा हम लोग मॉडिफाई किया। टीचर्स भी हम लोग ट्रेनिंग, जो मॉन्टेसरी ट्रेनिंग, जिस चाइल्ड को कैसे हैंडल करते हैं उसका ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। और थोड़ा सा अभी हम लोग जैसे 11-12 में बच्चे जैसे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी इस बार से हम लोग थोड़ा मॉडिफाई, क्योंकि हम लोग अभी मंगलदोई एरिया में हम लोग ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। अभी गुवाहाटी व दूसरा जगह में नहीं भेज के, क्योंकि आजकल थोड़ा सा बच्चा डाइवर्ट हो जाता है हायर क्लासेस में, सबको मालूम है। थोड़ा सा बोर्ड जब एनवायरनमेंट मिलता है, वाइड एनवायरनमेंट मिलता है, तो बिगाड़ने का चांस होता है। तो सब कोई अभी ज़्यादातर पेरेंट्स का मैंने कम्युनिकेशन जब किया तो वो लोग बोल रहे हैं कि सब हाई सेकेंडरी को भी थोड़ा आप अच्छा करो। तो हम लोग बच्चा अभी दूर नहीं भेजना चाहते, हम लोग अपना आँख का सामने ही रखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जब 1-2 बच्चा ही है ना, तो इसीलिए हम लोग भी अभी हायर सेकेंडरी को थोड़ा काफ़ी इस बार से मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टीचर्स का भी हम लोग ठीक ठाक रिक्रूटमेंट कर दिया। और एक अच्छा न्यूज़ है, जो ये आपका क्लास 12 का जो तेजस प्रोतिम से हो रही है, बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा है। तो वो एक हम लोग का मोटिवेशन, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स मिला। जिस दिन भी एग्जाम हुआ, मैंने जब बात किया, सबने मोटा मोटी अच्छा हुआ है बोल के बोला है। और उसका एक्चुअली वो मेडिकल स्टूडेंट है, उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेन है, मैथ्स सिर्फ फिजिक्स सपोर्ट के लिए वो पढ़ रहा है, लेकिन एग्जाम रजिस्टर नहीं हुआ है। मैथ का वो सब्जेक्ट ऑफिशियली नहीं है उसके पास। उसका बावजूद वो जेईई मेंस में 91 परसेंटाइल मिला। ये एक हम लोग के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, एक पॉजिटिव साइड है, क्योंकि उसने यहाँ पे ऑलमोस्ट वो रेगुलर क्लास किया, थोड़ा बहुत वो ऑनलाइन का सपोर्ट लिया है। तो 91 परसेंटाइल सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मार्क्स से मिलना, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मेडिकल का एंट्रेंस है जून जुलाई में है, मई जून जुलाई में, तो उसमें वो बहुत बेटर करेगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। माई हार्ट इज सेइंग दैट, बिकॉज वो फिजिक्स और केमिस्ट्री सिर्फ 91 परसेंटाइल अगर जेईई में मिला, तो ऑब्वियसली वो मेडिकल में अच्छा रैंक लेके आएगा। अंकिता का भी 90 परसेंटाइल मिला है, क्योंकि अप्रैल में दिया है, और नेक्स्ट फिर अप्रैल में देने के बाद उसका इम्प्रूवमेंट होगा। सो एंट्रेंस का भी हम लोग थोड़ा फाउंडेशन ठीक ठाक बना लिया। तो नेक्स्ट ईयर अभी 2025-26 सेशन हम लोग ऑलमोस्ट अभी 200 प्लस एडमिशन हो चुका है। तो हम लोग चाह रहे हैं थोड़ा सा मिक्स हो, थोड़ा सीरियस स्टूडेंट यहाँ पे आए, क्योंकि गुरुकुल हैविंग ए वेरी सीरियस एनवायरनमेंट। क्योंकि इस बार जो क्लास 10 का बैच है, हम लोग 3 बार प्री बोर्ड कंडक्ट किया। जो बच्चे लास्ट में जो अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम फोबिया उन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि जब बच्चा का क्या होता है क्लास 10 में नर्वस होता है, नर्वसनेस नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग इतना ट्रेनिंग दिया है और हम लोग इतना इमोशन कर दिया है, उस बच्चे को सीरियस कर दिया। सीरियस इन द सेंस हार्टफुल सीरियस, 2 टाइप का सीरियस होता है। एक होता है करियर के लिए कि पढ़ेंगे नहीं तो लाइफ में क्या होगा, वो नहीं है। हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि पढ़ाई को देयर फाइंडिंग हैप्पीनेस थ्रू स्टडीज, और वो दिल से कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पहले थोड़ा सा उत्पत्तियां था, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता था, लास्ट मोमेंट तक सब बहुत दिल से मतलब सीरियस हो गए। वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिला। हम लोग का टीम भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। हॉस्टल का भी एनवायरनमेंट अभी मोटा मोटी ठीक ठाक हो गया, पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड है। बिकॉज कोई भी स्कूल का हर एक पार्ट को परफेक्ट बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। लोग एंटायर गुरुकुल टीम बहुत अच्छा कर रहा है। सो और एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पे इतना शांति माहौल है, पूरा ग्रीन कैंपस, और ये जो फील्ड है, प्लेइंग फील्ड, अभी और बड़ा हो जाएगा। इधर हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 मंथ का अंदर हम लोग इसको क्लियर कर देंगे। मोटा मोटी कंस्ट्रक्शन खत्म होने वाला है, अभी विदिन 1 मंथ ये खत्म हो जाएगा। एंड 2-3 चीज़ें और बताना है। जैसे हम लोगों का साइंस लैब, जैसे क्लास 6, 7, 8 को भी हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं। प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी हम लोग लास्ट ईयर एक नया कोर्स हम लोग इम्प्लीमेंट किया था, एंड कोडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें एक
जब बच्चे को नया एक सब्जेक्ट मिलता है जो अभी विद इन नेक्स्ट 5 to 10 years में क्या होगा, होल कंट्रोल विल बी बाय एआई कोडिंग। जब इसमें मैं एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूंगा। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो हम लोग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बोल के एक सब्जेक्ट हुआ करता था। तो उस टाइम हम लोग पढ़ता था कि 5 जनरेशन कंप्यूटर आने वाला है, एआई कोडिंग आने वाला है, एक टाइम आएगा जो टोटल वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल होगा। तो हम लोग कभी कभी क्वेश्चन पूछते थे, इज इट पॉसिबल? लेकिन अभी ऐसा हो गया कि आप कुछ भी चीज एआई कंट्रोल कर रहा है। तो बच्चा अभी जो 1 से लेके हम लोग का 9 तक हम लोग एआई कोडिंग लास्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया था, तो न्यू था। हम लोग का भी टीम पे अच्छा परफॉर्म किया है, बच्चा काफी सीखा है। तो एक दो स्टूडेंट अभी देखा है कि हम लोग जो इनोवेशन, जो सीबीएसई का जो इनोवेशन काउंसिल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका जो अप्लाई किया, एक दो स्टूडेंट को अभी नॉमिनेट भी हो गया है। जो निखिल कलिता एक लड़का है, तो उसको फिर कोई कंपनी से भी ऑफर आया। तो क्या होता है कि बच्चे के लिए बहुत एक्सपोजर है, नाउ इट इज सो मेनी एक्सपोजर आर देयर। तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। और इस बार हम लोग सीबीएसई का जो जितना भी स्पोर्ट्स वगैरह था, स्पोर्ट्स वगैरह भी हम लोग काफी पार्टिसिपेट किया है। तो फुटबॉल में भी सेमीफाइनल तक पहुंचा। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग और ट्राई करेंगे। एंड एक स्टूडेंट जो दिशना चंद, जेयर चंद, वो आपका एशियन गेम्स में जो युगा है जिम्नास्टिक, उसमें गोल्ड मेडल मिला है। तो वो हम लोग के लिए एक प्राउड मोमेंट था। तो काफी गुड न्यूज़ आर देयर, सो मेनी गुड न्यूज़ आर देयर। अभी जैसे हम लोग का कोई भी टीम, कहीं साइंस एग्जीबिशन होता है, जहाँ पे भी पार्टिसिपेट करता है, और मैथ ओलंपियाड हो गया, स्टेट मैथ ओलंपियाड, स्टेट साइंस ओलंपियाड, जहाँ पे पार्टिसिपेट करता है वहाँ पे भी हम लोग टॉप अच्छा स्कोर करते हैं। व्हाई? बिकॉज स्टूडेंट हैविंग फाउंडेशन। सो वी हैव बीन ट्राइंग to create foundation natural learning. So this is one of the strong side in Gurukul, and we management team, young management team, used to motivate everyone. We used to create bonding, and bonding generally important. Emotions are important, and if you see in developed country, people are so much successful, but emotions due to lack of emotions, people used to suffer. They used to take sleeping tablets for sleep. That's why for peaceful life, for happy life, we need mental relaxation, and Gurukul always tells we have to physically active and mentally relax. We are working for that. So, and miles to go before we sleep. So this is one of my greatest slogan. So we are focused in our journey. Enjoyment needed, but we are finding happiness, enjoyment through our joyful knowledge sharing. So some team members are there. Today is Sunday, all teachers are not available. So let us talk with some teachers for their sharing the views. So this is one of our energetic teacher, Bobby Dotto Bharali ma'am, because this time I heard after social exam in class 10, everybody's face was so bright. They called us and shared their exam situation, and everybody told maximum part was well designed by Bobby Dotto ma'am, and they felt so much support. And for that I am thankful to ma'am, and I want to listen some views or knowledge share from ma'am. And I have been serving in this school for a period of 3 years, and I am very thankful to this institution that sir and ma'am as a continuing education teacher especially in class 10. And I have been very grateful to the students also, that they are very helpful to me and very cooperative. I can say that they are very cooperative with me, and during this class time also they have very much great cooperation to me. And for that only last year we also had a very good result, especially in social science also. 3 of our students got 99. Only there were lack of 1 mark only for 100%. But this year I think most of the students, like 15 students may get 100%, and I believe that they will get, because they are very good and whatever I taught they did accordingly. So I'm very thankful to them for cooperating with me, and very thankful to sir and ma'am for giving me a chance to work in this institutions. So this year also many things sir has implemented in these institutions, such as the primary section especially I have seen.
this year some more implementation is going to do, such as our KG classes, like they are going to start this time, and with activity classes. Most of the classes will be activity based on. So I will be also part. I am thinking I will be also part of it, as I have done this in Army School in Jorhat. So something I am going to do for this in the near future for the smaller primary sections. And thank you, ma'am and sir, for giving me a chance to work in this. Request our most energetic ma'am in the sense quite positive. Whatever I assign work to her, she never says no, and every time with positive views, positive manner, she used to respond. And for that, really, I'm thankful that this type of our गुरुकुल family members are there with us. So generally मैं किसी को तो तारीफ नहीं करता हूँ, ये जो भी है from heart, and जो guardians known है they can connect with the Rabha, I'm working here since 2023. I'm working here as a PRT teacher of English and hostel warden too. I'm very much glad to be the part of this school. I have developed myself, like personally and professionally. I have learned so many things. I have developed myself, and I'm trying to do my best for the students also, like hostel students. They're very much cooperative with me. I'm expecting better result from them also. I'm pushing them to study, and like here the environment is also very good, and like teachers are also very much cooperative, and like principal ma'am and directors they're very much cooperative. Whenever we need any help, they help us, and and this school is very much good, and they're giving different kind of activities like sports, and like for like they are conducting different type of exams like Olympiad exams and all. It's very good, and their environment for study for hostel students also, it's very good for studying. Like environment is very good, and like it's sound free places. So Rachel, thank you. Thank you, ma'am. So আমাৰ মাজত আছে তৃষ্ণা, মই এইকাৰণে তাইক ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব দিব বিচাৰিছো। যিকোনো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৱৰ্ক, যিহেতু আমি ইয়াতে থাকো, আমাৰ ক্লাছ থাকে জেনেৰেলি 8টাৰ পৰা 2টালৈ ক্লাছত বিজি থাকো, সেই সময়ত আমি মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৱৰ্কত ইমান এটা গুৰুত্ব দিব নোৱাৰো। তো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কামবিলাক আমাৰ জেনেৰেলি ইভিনিং শিফ্টত হয়, বা অলপ দেৰিকে হয়, বা মৰ্নিং শিফ্টত হয়। তো এই তাই সদায় এভেইলেবল থাকে যিকোনো বস্তু, মানে কি হয় যেতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কামবিলাক smoothly হয়, তেতিয়া একাডেমিকটো এটাৰ লগত এটা ৰিলেটেড, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो एकेडमिक में भी हम्पर आएगा, और एकेडमिक में भी अगर इम्प्रूव नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम्पर आएगा। तो देयर इज कनेक्शन। सो एक हो गया आपका तृष्णा और पराग, ये लोग तो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो कुछ भी काम होगा, कुछ भी आपका कंफ्यूजन होगा, यू कैन कॉल टू हर। मैं इसलिए इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, कभी कभी गार्जियन का कंफ्यूजन होता है कि किसको कम्युनिकेट करो। कभी कभी क्या होता है, छोटा छोटा चीज के लिए मुझे फोन कर देता है, तो आप इनका नंबर लेके रख सकते हैं। काफी पॉजिटिव है, काफी हेल्पफुल है, एंड यू विल गेट ए गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम हर। सो थैंक यू तृष्णा, किबा कब বিচাৰিলে কোৱা 1-2 লাইন। ধন্যবাদ ছাৰ। মই ইয়াতে কাম কৰা প্ৰায় এবছৰ হ'ব, বহুত ভাল লাগিছে, বহুতখিনি মই নিজৰ মানে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিছোঁ ইয়াতে কাম কৰি। ছাৰ थैंक यू। हमारा ज्वाइन किया था, तो इनका भी मैंने व्यूज थोड़ा सा लेना चाहूंगा। जब हम लोग होम विजिट किया था, इस बार हम लोग का मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट था। लास्ट 3 मंथ से हम लोग बहुत ज्यादा होम विजिट किया है। तो एक पेरेंट्स जो काफी दूर से बच्चा आता है, शायद राशिक बरा आई थिंक नेम, तो उसका पेरेंट्स बोला है कि पहले मैथ बिल्कुल उसको पसंद नहीं था, मैथ्स में उसको मन नहीं लगता था, लेकिन जब से कमलेश सर पढ़ाना शुरू किया तो वो लोग मैथ में काफी इंटरेस्टेड है। जो हम लोग कल मैंने एक प्रोग्राम में अटेंड किया था, तो कि एक एनवायरनमेंट का बहुत इम्पैक्ट होता है। जैसे बिहार यूपी, ये 2 जगह है मैथ का
वहां पे होता है कि जुगाड़ लगाओ, मैथ में जुगाड़ लगाओ, मतलब दिमाग लगाओ। तो और वहां पे जो IIT, NIT, मेडिकल, UPSC जितना क्रैक होता है ना, ड्यू टू लॉजिकल माइंड, एंड लॉजिकल माइंड डेवलप होता है मैथ का वजह से। तो सर ने काफी मेहनत किया बच्चे का। अभी मतलब बच्चे को देखिए, एक होता है कि आप अच्छा पढ़ाते हो और बच्चे आपको लाइक कर रहा है, आपसे पढ़ना चाहता है, दोनों में डिफरेंस है। तो क्या होता है कि मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि आपके पास कितना नॉलेज है वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है हाउ मच यू कैन इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, हाउ मच यू कैन मेक द स्टूडेंट इन टू लर्न इन पॉजिटिव डायरेक्शन, वो मेन है। तो सर का जो मैंने पॉजिटिव फीडबैक मिला गार्जियन से, वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। कभी गार्जियन अगर मुझे शेयर करता है कि आई गेट ए पॉजिटिव फीलिंग एंड दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर मी। सो सर को रिक्वेस्ट करूंगा कुछ शेयर करें। मैं यहाँ पे TGT मैथ पोस्ट पे हूँ। तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारे स्कूल्स में काम किया, बट वहाँ क्या होता था ना, काम करने से वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होते थे। बट मैंने यहाँ आया तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। सर जो है काम करने वाले लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, इंकरेज भी करते हैं, और ये खुद भी बहुत हार्ड वर्किंग है, इसीलिए सर ऐसा बोल रहे हैं। और एमटेक सर खुद किए हुए, मैम भी यहाँ प्रिंसिपल मैम भी MSc मैथमेटिक्स से है। तो यहाँ इन्वायरमेंट मुझे बहुत अच्छा मिला, वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पढ़ाने में, और बच्चे भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, घर की तरह ही लगता है हम लोगों को। शाम को हम लोग यहीं पे रहते हैं, पढ़ते हैं, बच्चे भी यहीं रहते हैं, साथ में रह के पढ़ते लिखते हैं सब कुछ। थैंक यू सर, आपने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया काम करने के लिए। इस बार फिजिक्स पढ़ाने वाला है 11th साइंस को, 11th साइंस 12th साइंस, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स का टेक्निकल टीचर मिलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं जनरली 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मेरा एक प्रॉब्लम है कि नॉलेज लेवल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतना साल से मैं पढ़ा रहा हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा के इतना बड़ा स्कूल खुला, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, बिकॉज वी हैव ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड वी हैव टू कनेक्ट, आई हैव टू सी द public part also, connection with guardians, dealing with guardians, any problem I have to solve। तो मैं बच्चे को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, इसलिए सर अगर फिजिक्स को इस बार खत्म करता है तो मैं केमिस्ट्री का और एक टीचर ज्वाइन कर रहा है। तो एक बार 11-12 पे इस बार हम लोग थोड़ा सा लेट अस एक्सेलरेट देखते हैं, क्योंकि जरूरी है। 11-12 में ना बच्चा डिप्रेशन में भुगता है, तो इस बार हम लोग इतना जॉयफुल करेंगे, इतना मोटिवेट करेंगे, इतना सीरियस करेंगे कि वो लोग खुश हो जाए, वो लोग दिल से बोले क्या हाई सेकेंडरी था, क्या 11-12 था, खुशी में। सो एक चैलेंजेस है कि मैं इससे पहले थोड़ा बोल देता हूँ। मैं 9 इयर्स हॉस्टल में था, 9 इयर्स कॉटन में 2 साल, RKB हॉस्टल, हाँ, इंजीनियरिंग में 4 साल, एमटेक में 2 साल। तो हॉस्टल में जो एनवायरनमेंट एंड फूड अच्छा मिलना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे भी ये चैलेंजेस है, एनवायरनमेंट मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। मैं भी काफी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है। अभी गर्ल्स का जैसे नर्सरी मैम तो पूरा, इनको तो मैं सैल्यूट है, ये सक्सेस में बोलने के लिए। बॉयज में थोड़ा सा इश्यूज है, थोड़ा बहुत होता रहता है, फिर इम्प्रूव होता है, फिर होता है कि बॉयज को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। तो अभी मानस न्यू वार्डन अभी ज्वाइन हुआ है, कि मैं ऑलरेडी बोल दिया कि चैलेंजेस है, फूड में भी चैलेंजेस है, हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। इस बार थोड़ा हम लोग इसमें फुल फोकस रहेगा। तो ये 1 हफ्ता हो गया ज्वाइन किया हुआ है, कोशिश कर रहा है। तो তুমি যদি কিবা কোৱা ক'ব বিচাৰা কেনেকৈ যাবা? অহাৰ লগতে ফুডত অকণ প্ৰব্লেম আছিল, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান বহুতখিনি ভাল হৈ গৈছে। আৰু লগতে পোৱালিবিলাক অকণ দুষ্ট থাকেই, সকলোৱে অকণ বদমাচি কৰে, কিন্তু এইবিলাক লাহে লাহে আমি ঠিক কৰিব লাগিব, আৰু কৰি আছো, লাহে লাহে ভাল হৈ যাব। আৰু গাৰ্জেনৰ ছাপোৰ্টটো আমি বিচাৰো। হয়, গাৰ্জেনৰ ছাপোৰ্টটো বিচাৰো, আৰু গাৰ্জেনে অকণমান ছাপোৰ্ট দিলে ভাল হয়। আৰু মাজতে মই অলপ মনত পৰিছে দুটামান কথা। গাৰ্জেন বিলাকতো মই লগ নাপাওঁ, गार्जियन भी लगे जिनका जैसे क्या होता है कि बच्चे को यहाँ पे रखता है, सोचता है कि घर से दूर है, वहाँ पे क्या खाना मिल रहा है, तो भर भर के सामान देके जाता है, छुप छुप के सिक्योरिटी को देके जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एक प्रॉब्लम क्या है कि अब जब तक लॉजिक नहीं देंगे आप समझेंगे नहीं, सामान देके गया, दूसरा बच्चा को भी वो आंखों गिरा है ना कि उसके पास सामान आया, तो कब छुपके से खाएगा, कैसे लॉक तोड़ देगा, तो इट्स वन ऑफ द चैलेंजेस। तो हम लोग
मैं भी बाहर में 9 साल रहा, 10 साल रहा, हॉस्टल में रहा। खाना पीना जब पढ़ाई में ध्यान होता है ना, खाना पीना नॉर्मल मिलने से भी हो जाता है। तो मैं इस पर रिक्वेस्ट रहेगा, कभी कभी जैसे आप लोग महीना में सेकंड सैटरडे जब आते हैं तब कुछ खिला के जाओ, बीच में सामान आप देके जाते हो ना, बच्चे का मतलब ध्यान सब उसमें ही रहता है, तो पढ़ाई तो होगा नहीं, हम लोग का भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, एक दूसरे का सामान को लेकर झगड़ा लग जाता है, कभी कभी उसको लेकर कभी परेशान हो जाता है। तो आप लोग चुपके से मैगी पैकेट ये इधर उधर का सामान नहीं देने से ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक जो फूड है जो नीडेड उसमें तो हम ध्यान दे ही रहे। और ये जो सेकंड सैटरडे है उस दिन आप कुछ स्पेशली खिलाना चाहते हो खिलाओ, और रेंडमली अगर आप आते हो चुपके से आके मिल के जाते हो वो भी खराब है, क्योंकि बच्चे का ध्यान उसमें चला जाता है। जैसे हम इंजीनियरिंग पढ़ाया था NIT पटना में, वहाँ पे तो हम लोग साल में मुश्किल से एक बार आ पाता था, वी डोंट हैव एनी चॉइस। तो क्या हो गया कि मैं बनवास खटा है, बनवास, जब तक मेरा एक कहावत है लाइफ में, जब तक बनवास नहीं खटेगा ना सक्सेस नहीं होगा। स्टूडेंट लाइफ में तो बनवास काटना ही है, थोड़ा सेक्रीफाइस जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सब फैसिलिटी मिलेगा, कंफर्ट जोन में रहेगा, सक्सेस होगा, ऐसा नहीं होता। तो ये एग्जांपल है कि मैं 4 साल में इंजीनियरिंग 4 साल में 2 बार मैंने आया। मेरा दीदी का शादी मैंने मिस कर दिया, मैंने नहीं आया। मैंने कहा एक दिन जाके मैं क्या करूँगा इतना दूर, क्योंकि एक हफ्ता बाद मेरा एग्जाम था, कि मैंने ज्यादा फोकस मेरे करियर में गया था। कि जब वो नहीं करता तो अभी ये पोजीशन नहीं होता, क्योंकि आप अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। और इंग्लिश में पोएम पढ़ा, एंड माइल्स टू गो बिफोर स्लीप। अगर हमको टारगेट में जाना है तो इधर उधर अगर हम दिमाग लगाएंगे तो नहीं होगा। कंप्यूटर लैब कम एएम कोडिंग लैब, सो ये लास्ट ईयर हम लोग काफी डेवलप किया है, बच्चा भी काफी एंजॉय किया है। सो हम लोग का जो कंप्यूटर जो टीचर है एआई कोडिंग का टीचर्स है, वो आज तो संडे है तो परवेश सर इसको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन देगा, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सो परवेश सर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए कैसे हम लोग डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ लेके जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम MD परवेज अहमद अंसारी है। हम गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशनल लिविंग में एआई कोडिंग का टीचर है। ये हम लोग का रोबोटिक्स प्रोजेक्ट है। ये एक IR सेंसर कार है जो हम लोग रोबोटिक्स किट का सहायता से हम लोग इसको बनाए हैं। ये जो हम लोग कार है, ये जो है इसको ये मदरबोर्ड है और इसमें IR सेंसर लगा हुआ है। ये सामने में ये व्हील सब है, ये मोटर है, ठीक है। और ये जो हम लोग का कार है ये IR सेंसर कार है जो सेंसर से काम करेगा। और भी बहुत सारा हम लोग का प्रोजेक्ट है, इस पे हम लोग डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। IR सेंसर कर सकते हैं, फिर से डिजिटल कार कर सकते हैं, और भी हम लोग का मेकर बोर्ड में बहुत सारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग एयर क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। तो बच्चे लोग भी इसका बना रहे हैं इसको? हाँ, बच्चे लोग भी इसको सीख रहे हैं क्लास 1 to 5। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि मैंने काफी मतलब हायर क्लासेस का हायर जो एजुकेशन होता है उसमें काफी मैंने प्रोग्राम अटेंड किया है। तो कहना है कि जब वो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं या डिग्री पढ़ने जाते हैं, ड्यू टू लेक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज दे फेस लॉट। तो हम लोग थोड़ा सा उसके साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। और R&D रिसर्च डेवलपमेंट होता क्या है, बच्चे को पहले से अगर माइंड में थोड़ा प्लान कर दे तो वो उसको एक डायरेक्शन मिल जाता है जिंदगी में करना क्या है। तो हम लास्ट ईयर जैसे निखिल कलीजा अभी है, कंपनी से ऑफर आ गया 7 क्लास स्टूडेंट को, ये बड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, इट्स ए वेरी बिग थिंग्स फॉर अस। तो ऐसा और भी आने वाला है, अभी टाइम में हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और हम लोग पूरा यंग टीम वी आर ट्राइंग और लेवल बेस्ट है, लेवल बेस्ट। और हम लोग का जो ह्यूमैनिटीज का टीचर है शुभम सर, ही इज ऑल्सो हिज एंकरिंग पार्ट इज यू नो अप टू मार्क। किसी ने अगर UPSC का तैयारी करना चाहते हैं सर से हेल्प ले सकते हैं। अभी हम लोग उसमें आ रहे हैं धीरे धीरे, फिर हर एक साइड में हम लोग काम कर रहे हैं। बच्चे का जहाँ पे इंटरेस्ट वहाँ पे जाएगा, एक्सपोजर हम लोग देंगे। सिर्फ साइंस मैथ डॉक्टर इंजीनियर नहीं, सब डॉक्टर इंजीनियर बनेगा मतलब जरूरी नहीं है ना। हम लोग साइंटिस्ट भी बनाना है, हम लोग IAS ऑफिसर भी बनाना है, IPS भी बनाना है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाएगा, IIM में जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। और हम लोग टीचर्स भी बना रहे हैं, प्रोफेसर कॉलेज का प्रोफेसर के लिए हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि आप PhD करो, आगे जाके हायर स्टडीज करो। क्योंकि यहाँ पे एक वो है कि टेंडेंसी है किसी तरह ग्रेजुएशन करके जॉब मिल जाए, सेटल हो जाए, तो हायर स्टडीज कोई नहीं करना चाहते, पैशंस नहीं। बट वी आर द गुरुकुल फैमिली आर मोटिवेटिंग द स्टूडेंट एंड for higher study. Hello everyone, my name is Shubham De. I am currently teaching here humanities subject. In lower classes I am taking social sciences. One part that is very important for students especially who are from Northeast, that we have very less exposure in terms of कि competitive exams में कैसे score करना है।
बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मीन्स हम लोग पहले ही सोच लेते हैं कि इसमें तो बिहार यूपी के बच्चे ही आगे चले जाएंगे, बिकॉज देयर प्रिपरेशन लेवल इज सो गुड. नाउ वी एज अ स्कूल आर ट्राइंग टू मोटिवेट आवर स्टूडेंट्स फॉर not only Indian competitive exams, but for exams like TOEFL and GRE. Yesterday, there was a meeting with a person from an English. They are trying to build a module, and we are trying to talk with them so that we can build our students' English communication skills according to the CEFR, that is the common European reference that is used for TOEFL and GRE. Now, for students who are interested in research and development, it is very important, and for mostly for science and technology students, it is very important that they should go for abroad. I always tell them कि बाहर जाओ, experience लो और काम यहाँ आकर के करो. That is the most important thing, कि हम लोग बाहर जाएंगे तो जो exposure हम लोगों को मिलता है वहां जाके settle नहीं होना है. वहां जो कुछ भी सीखेंगे वहां उसको सीख करके अगर हम लोग इसको, जैसे for example last day I was talking to students of class 8. मैंने उनको बताया कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ पे अभी भी होता है, बैलगाड़ी लेकर के लोग जाते हैं, बैलों से खेती होता है, ट्रैक्टर आज बहुत कम है इंडिया में. बट द थिंग इज कि हम लोगों को सोचना है इंडिया सबसे ज्यादा ट्रैक्टर इंपोर्ट कर रहा है बाहर. किसके लिए कर रहा है? क्योंकि वहां का एग्रीकल्चर इतना ज्यादा डेवलप्ड है. तो बाहर से एग्रीकल्चर के टेक्नोलॉजी अगर हम लोग सीख के आए और उसको यहाँ इंप्लीमेंट कर पाए, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. सो ऐसे ही ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे हम लोग बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं. दीज आर द एग्जाम्पल्स जिससे हम लोग, आई थिंक वी कैन ब्रिंग अ चेंज, एंड दैट इज आवर प्राइमरी मोटिव. That is our primary motive, that how we can bring change into the mind of the students, and then these minds will generate a new generation that will make our country a better place to live. एक चीज बोलना चाहेंगे, लाइफ में हम लोग कितना भी सक्सेस हो जाए, हम लोग अपना पेरेंट्स को भूलना नहीं चाहिए. तो आजकल देखा जाता है कि बच्चा जब ग्रो कर जाता है, अपना पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं होता है, वो भी हम लोग उसका ऊपर भी काम कर रहे हैं. इस बार हम लोग जो फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें हम लोग ब्लेसिंग लेने के लिए पेरेंट्स को बुलाया था कि उन लोग को पैर धो के, उसके बाद देखा है मैंने काफी अच्छा बॉन्डिंग फील किया. मतलब देखा है मैंने काफी हम लोग एक अच्छा स्टेप लिया है. तो हम लोग बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि आप पढ़ लिख के बाहर पढ़ के आके इंडिया में ही काम करो, असम में ही काम करो, फिर अपना पेरेंट्स को टाइम दो. तो इसके लिए मैं प्रिंसिपल, हम लोग का जो सबसे लवली प्रिंसिपल है, सब स्टूडेंट लाइक करते हैं, तो मैम को थोड़ा सा मैं इसका ऊपर बोलना रिक्वेस्ट करता हूँ. Thank you, sir. So I am Sangeeta Adhikari Sarkar, principal of Gurukul Group of Educational Wing. So as a whole, I can say 2-3 things that are most important. First one is the education. That is the primary thing they should do. And secondly is the bonding with the teachers. Student का bonding होना चाहिए teachers के साथ में. लेकिन वो bonding भी हमको देखना है कि that bonding should be a genuine bonding, जिससे बच्चा कभी भी डरे नहीं. हम लोग को अप्रोचेबल, हमारा जो बिहेवियर है टुवर्ड्स द चाइल्ड, दैट शुड बी अप्रोचेबल, कि वो बिना हिचकिचाए वो बोल सके. जैसे नाउ सिंस लास्ट 7 years आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल. तो स्टूडेंट्स दे आर नॉट हेजिटेटिंग टू से एनीथिंग, लाइक वट एवर जेन्युइन प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, दे यूज्ड टू टेल मी. एंड रिगार्डिंग देयर लाइक उनके फीलिंग्स, उनके थॉट्स, जैसे कि उन रिलेटेड टू देयर एजुकेशन, या फिर मतलब उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, या फिर कुछ और अगर वो बातें शेयर करे जिससे उनका मन हल्का हो, तो वो भी बातें वो शेयर करते हैं. तो मैं ट्राई करती हूँ कि उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. एंड आई यूज्ड टू डिस्कस विद द टीचर्स आल्सो, बिकॉज दे शुड आल्सो नो what are the things that is going in their mind, so that they can also treat them. So this is my approach. So these 2-3 things I think most importantly we have to inculcate in the mind of the students, so that they will be approachable towards the principal or the teachers. Thank you. So lastly, मैं अभी न्यू सेशन है, कोई भी अगर कंफ्यूजन है एडमिशन के लिए, कभी बाहर में एक है कि गुरुकुल में बहुत ज्यादा फीस है, ऐसा कुछ नहीं है. हम लोग का फी को एक साथ कैलकुलेट किया जाता है बोल के थोड़ा ज्यादा लगता है. तो इसलिए आप लोग एक बार आके देखें, हैं, जज करें. और मैं भी चाहता हूँ कि जज करके एडमिशन को ले. और हम लोग अपना, मेरा बचपन से एक स्ट्रगलिंग चाइल्डहुड था, तो मैं चाहता हूँ कि मैंने जो सीखा स्ट्रगल करके, वो बच्चे को हम देके जाए, उसी में हम हैप्पीनेस फाइंड कर रहे हैं. और एक इसी में मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जो मेरा नेटिव प्लेस है, जो कलाईगो एरिया, उदालगुरी, और वो जो एरिया में एक मेरा स्कूल खुला है जो मेरा नेटिव प्लेस के लिए, तो स्कूल भी अभी काफी ग्रो कर गया. तो वहां पे भी आप एडमिशन दे सकते हो. पहले मैंने कभी इस बात को कभी जिक्र नहीं किया, कभी मैंने अनाउंस नहीं किया, क्योंकि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने स्कूल से, तो मैं कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहता हूँ. मेरा ये है नहीं.
मैं जब खुद सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट, हम लोग अभी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, तब हम लोग इसको फोकस करते हैं। अदरवाइज में कभी हम लोग बाहर में बोर्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी ठीक ठाक हो गया। वी आर शेयरिंग आवर इंफॉर्मेशन। सो वो स्कूल भी अभी काफी स्पीड ले लिया है, वहाँ पे टीम भी अच्छा हो गया, प्रिंसिपल वो तमिलनाडु का प्रिंसिपल है, और अभी इस बार रिक्रूटमेंट भी हुआ है, वहाँ पे अभी क्वार्टर बन गया, टीचर कुछ बाहर से है, कुछ लोकल से मिल के पूरा अच्छे से काम कर रहे हैं। तो स्कूल में भी आप लोग एडमिशन के लिए जा सकता है, और उसमें फीस बहुत कम है, क्योंकि वो एरिया एकदम डेवलप नहीं है, मेरा नेटिव प्लेस है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ से भी कुछ बच्चे आगे बढ़े, जो कि मुझे एक ओल्ड एज में एक फील हो कि लाइफ में कुछ किया, मतलब लाइफ ऐसे बेकार जाने नहीं दिया, है ना। बिकॉज मैं बचपन में बहुत सारा स्लोगन हमको मिलता था, टीचर जो भी बोलता था मैं उसको नोट करता था। तो वी आर नॉट सेंट इन द वर्ल्ड फॉर फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। सो वो एक माइंड में प्लान कर दिया कि हम जिंदगी में हमको कुछ पर्पस के लिए भेजा है, ऐसे नहीं भेजा है, तो वो पर्पस को फुलफिल करके जाना है। तो मैं कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम फाइंडिंग हैप्पीनेस थ्रू माई वर्क। हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ। कभी कभी क्या होता है, इतना वर्क हो जाता है, क्योंकि हम लोग टीम मेंबर्स में बहुत ज्यादा चीज हैंडल करना पड़ता है, कभी कभी बहुत हार्ड वर्क हो जाता है, मैम को भी बहुत एकदम हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ मैं एक ही तो लाइफ मिला है ना, लेट अस डू ना, ओके ना, हो जाएगा ना, बच्चे के लिए कर रहे हैं ना, हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो सुकून का नींद आता है एकदम, मतलब दिन भर काम करने के बाद जब आप शांति से, मन अगर खुश है तो रात को बहुत शांति से नींद आता है, और सुबह फिर हम चार्ज अप हो जाते हैं फॉर आवर बेटर वर्क। तो आज इतना ही है, और एक वीडियो बनेगा और थोड़ा, क्योंकि आज हम लोग प्लान नहीं किया था, ऐसे ही नॉर्मली बना दिया। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट संडे को हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें हम लोग और डिटेल्स थोड़ा आप लोगों को शेयर करेंगे। तो